welcome all of you for this session today. We are starting a new series today that is Laws of UX. We will essentially cover 12 different laws of UX, which are compiled by John Yablonsky. Let's start. Okay. And it will also be useful for all of us in terms of how we interact with digital technologies day to day in our lives. तो हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जो एप्स यूज करते हैं, जो वेबसाइट्स यूज करते हैं, तो उसमें हमारा बिहेवियर कैसा होता है और क्यों होता है, और वो बिहेवियर समझने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन किस तरह से डिजाइन करना है सो दैट इट अपील्स टू यूजर्स, इट बिकम्स फ्रेंडली टू देम. यूजर एक्सपीरियंस इज or usability is nothing but one of the key features of user experience. It means your product should be easy to understand, it should be easy to interact with, it should be friendlier, it should be easy to learn and teachable and trainable. Okay, basically delighting the users. Okay, so let's jump into this beautiful session. We talk about three laws today, what you will learn in this session. So as overview, we talked about who the course is for. So graphics वालों के लिए काम का है, user experience वालों के काम का है, but in general, it is useful to all of you who are interacting with digital technology day in, day out. Okay, we'll talk and brainstorm three different laws today. We start with Jacob's law. These laws are named after the scientists who found them, who invented them, who discovered them. तो जिन्होंने ये law invent किया, उनके नाम पर ये laws का नाम रखा गया. Jacob's law is about the person Jacob who invented it. Similarly, Fitt's law and Hicks law. Okay. So let's see who the course is for और क्या इसमें बताया जा रहा है. This course is specially designed for interaction or intersection between psychology and UX design. तो हमें पता है UX बहुत इवॉल्व हुआ है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में. हमने पहले वेब 1.0 देखा 10 साल पहले, कुछ साल पहले, जब वेबसाइट्स वन साइडेड वेबसाइट्स होते थे. यू आर इंटरेक्टिंग विद स्टैटिक वेबसाइट्स, HTML वेबसाइट्स, जहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिव बिहेवियर नहीं था. बट रिसेंटली इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दिस अरीना हैज इवॉल्व्ड अ लॉट. Now there is two-way websites, web 2.0 as we knew it. अभी web 3.0 की तरफ हम जा रहे हैं, where interaction is even more important. One important thing to explore and learn in this is how UX interacts with human psychology. तो देखो, ह्यूमन बिहेवियर ये सेपरेट सब्जेक्ट होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना. कुछ कॉलेजेस में, कुछ करिकुलम्स में ये हम पढ़ते हैं. तो ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं क्यों लेते हैं, क्या रैशनल माइंडसेट होता है, थिंक फास्ट क्या होता है, थिंक स्लो क्या होता है, गट डिसीजंस क्या होते हैं, ब्रेन डिसीजंस क्या होते हैं. तो ये साइकोलॉजी है पूरा. तो साइकोलॉजी और यूएक्स का इंटरेक्शन आपको इसमें समझ में आएगा कि ये लॉज हमें गाइड करते हैं कि हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी एंड हाउ कैन वी डू बेटर देयर. ओके, लेट मी जस्ट रीड दिस सेकंड पॉइंट. एवरी डिजाइनर शुड लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी टू बिल्ड इंट्यूटिव एंड ह्यूमन सेंटर्ड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस. तो ये क्यों जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है बिकॉज एवरी डिजाइनर नाउअडेज, जो भी यूएक्स में काम करते हैं, जो भी यूजर डिजाइनर हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हैं, उनको ये फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी पता होना चाहिए. Why? Because only then they can design products which are usable. Only then they can design products which are appealing to the people. Okay? Human-centered products, intuitive products. Intuitive मतलब खुद से समझ में आ जाता है. Okay? Provides accessible introduction to psychology fundamentals that have direct influence on design. तो ये लॉज उस जोन को भी कट करते हैं जहां पे साइकोलॉजी डिजाइन से कनेक्ट करती है. How human psychology affects design, as we learn. Okay. Now with this, without no further delay, let's jump into the first law. So Jacob's law. तो जेकब्स लॉ हम पहले पढ़ते हैं. जेकब्स लॉ वाज इन्वेंटेड बाय जेकब. यूजर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन अदर साइट्स एंड दे प्रेफर योर साइट टू वर्क द सेम वेज एज ऑल द अदर साइट्स दे ऑलरेडी नो. सो हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन माइंडसेट होता है. देखो, हम सर्च इंप्लीमेंट करते हैं अपने साइट पे, देन पीपल एक्सपेक्ट यू टू बिकम गूगल. कि आपका सर्च ऐसे क्यों नहीं चल रहा है, गूगल का सर्च तो ऐसे चलता है. या जब हम सबमिट के बटन पे रिफ्रेश का बिहेवियर रखेंगे तो यूजर्स को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बोलेंगे बाकी जगह पे सबमिट सबमिट करता है, आपके वेबसाइट पे सबमिट रिफ्रेश क्यों कर रहा है. सो वी कैनॉट डिस्कार्ड यूजर अफोर्डेंसेस. तो यूजर जो अफोर्ड करते हैं, यूजर जो सीख चुके हैं बाकी वेबसाइट्स के लिए, वो हम फॉलो करना चाहिए. वी कैनॉट जस्ट री इन्वेंट द व्हील, वी कैनॉट जस्ट क्रिएट एवरीथिंग ऑन अवर ओन एज वी फील लाइक. तो जो एक्सेप्टेबल डिजाइन हैं, जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसके अराउंड हमें चलना चाहिए. जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं तो हमें यूजर का ये लॉ ध्यान में रखना चाहिए. ओके, तो जो भी वेबसाइट्स और एप्स और डिजिटल साइट्स और एप्स के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं ना, वो एक बिहेवियर छोड़ता है आपके ऊपर, और उस बेसिक बिहेवियर को लेकर ही हम हर वेबसाइट को, हर ऐप को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर हाउ दिस लॉ इंपैक्ट्स फर्दर, बट बिफोर दैट लेट्स सी द हिस्ट्री. सो दिस वाज फाउंड बाय इन्वेंटेड बाय यूजेबिलिटी एक्सपर्ट जेकब नील्सन इन द ईयर 2000. तो ये जेकब नील्सन ने ये लॉ इन्वेंट किया था. इट इज ऑल्सो नोन एज जेकब्स लॉ ऑफ इंटरनेट यूजर एक्सपीरियंस. तो ये काफी पहले फाउंड हुआ है, 23 चल रहा है, 2000 में ये फाइंड किया था, 23 साल हो गए. तो इस 23 साल में ये दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंटरनेट यूजर एक्सपीरियंस.
as it is self-explanatory, as it is, as we understand why. Because जो भी आपका इंटरनेट पे यूजर एक्सपीरियंस होता है अलग अलग साइट्स के साथ, वो आप दूसरे साइट्स पे कैरी करते हैं. Okay, let's see the third point. Underlying factor of all user experience and directly related to mental models. Now let's see the overview of the law. कि इसका actual meaning क्या हुआ. हमने एक लाइन में law को समझा, but let's see. Users will transfer expectations built around one product to another. As we learned, एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लोग दूसरे प्रोडक्ट पे सुपर इम्पोज करते हैं, है ना. जो एक्सपेक्टेशंस एक प्रोडक्ट से, एक वेबसाइट से यूजर को मिलती है, वो दूसरे प्रोडक्ट पे वो लेके जाता है. ठीक है, वी कांट हेल्प दिस, एंड दैट्स व्हाई दिस लॉ, दैट्स व्हाई ये लॉ बनाया गया है. यूजेबिलिटी डिजाइन का, यूजर एक्सपीरियंस का ये बहुत प्रोमिनेंट लॉ है. ठीक है, एंड इट्स ओनली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस बेटर. Second point, by leveraging existing mental models, we create superior UX where user can focus on tasks rather than learning new models. Okay? जो एक्सेप्टेबल मॉडल्स हैं, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, एक्सेप्टेबल अफोर्डेंसेस हैं यूजर के माइंड में, उसी को लेकर आप चल सकते हैं. उससे डबल फायदा है. डबल फायदा कैसे? एक तो आपको रीइन्वेंट नहीं करना पड़ रहा है. यू डोंट हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ यूजिंग योर बटन्स, ऑफ डिजाइन, ऑफ स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स, राइट, पेज साइजेस. तो आपको पूरा स्टार्ट से नहीं स्टार्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स एंड मॉडल्स. तो एक ये फायदा है उसका. ठीक है, यूजिंग दिस लॉ. दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि यूजर को नई चीजें लर्न नहीं करनी पड़ेंगी. तो यूजर जब आपके वेबसाइट पे आएगा, रादर देन यूजर हैज टू लर्न कि अरे इनका ये बटन क्या करता है, और अब इन चीजों को अगर हम बेसिक चीजों को ही बदल दें, तो देन यूजर्स विल गेट कंफ्यूज. दे विल नॉट बी एबल टू डिराइव मच फ्रॉम योर मॉडल. दे विल नॉट बी एबल टू डिराइव मच फ्रॉम योर प्रोडक्ट. सुपीरियर यूएक्स कब बनता है? जब आप एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल्स को लेवरेज करते हैं, रादर देन आस्किंग यूजर्स टू लर्न द मॉडल्स अगेन, ऑल ओवर अगेन, which they have remembered and used for years now. When making changes, discord should be limited. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नॉट इन अकॉर्डेंस. मतलब डिस्कॉर्ड कम करो. जब आप कोई चेंजेस कर रहे हो अपने वेबसाइट पे, देन मेक श्योर इट इज pretty much similar to what users know already. Okay, we learned in usability sessions that users will spend very less time to judge your website or product. आपकी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से बहुत कम डिफर करनी चाहिए in terms of these mental models. You should keep things similar which are possible to keep similar. आपका जो यूएसपी है वो आप डिफाइन करो, रादर देन इन्वेंटिंग द व्हील अगेन. अब देखो मेंटल मॉडल्स क्या होता है. ये चीज मेंटल मॉडल्स मतलब देखो, वी आर अ क्रिएचर ऑफ हैबिट्स. तो आवर ब्रेन्स आर पैटर्न क्रिएटिंग मशीन. दे क्रिएट मेंटल मॉडल्स. तो ब्रेन क्या करता है? मेंटल मॉडल्स यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड एज शॉर्टकट्स और पैटर्न्स, है ना, और स्विचेस क्विकली. तो ये जो हैबिट्स है, स्विचेस हैं, शॉर्टकट्स इन द ब्रेन, ये आपको आसान करते हैं आपका डे इन डे आउट. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज बिहेवियर, रिजल्ट्स एंड व्हाट इज अ मेंटल मॉडल. So behavior, a mental model is what we think we know about a system, especially about how it works. तो देखो, जैसे ही आपको कोई बोलेगा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो मूवी का एक मेंटल मॉडल है. आपको पता है मूवी रहता है, फिर पॉपकॉर्न मिलता है, एक स्क्रीन रहता है, अंधेरा होगा, फिर हमको सीट पे बैठना पड़ेगा, है ना. वहाँ पे टिल्टेड सीट्स रहते हैं, रिक्लाइनर रहते हैं. तो आपका मूवी का एक मेंटल मॉडल है. यू नो हाउ अ मूवी वर्क्स, यू नो हाउ अ सिनेमा वर्क्स. So that is a mental model you carry in your brain already. So mental model is nothing but what we know already about a system. Now results. What are results? We use the knowledge we already have from past experiences when interacting with something new. तो हम जो पास्ट से सीखे हैं वही नॉलेज हम यूज करके आगे हैंडल करते हैं. तो जब नई जगह पे जा रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, तो दीज मेंटल मॉडल्स हेल्प अस. गुड यूएक्स इज पॉसिबल व्हेन डिजाइन इज इन अलाइनमेंट विद यूजर्स मेंटल मॉडल्स. तो देखो ये क्लियर, इसको भी हम लॉ बोल सकते हैं. इस लॉ का कॉरोलरी है ये. कॉरोलरी मींस साइड इफेक्ट्स. अगर आप यूजर मेंटल मॉडल्स को क्रॉस कर रहे हो आपके डिजाइन में, देन यू विल एक्चुअली कंफ्यूज देम एंड यू विल मेक देम लीव अवे योर साइट एज क्विकली एज पॉसिबल. So this, let's go into the second law for today, which is Fitts law. Fitts law is again named after scientists, which we will go to in a second. It is a little more technical, but just bear with me here. The time to acquire a target is a function of the distance to and the size of the target. ठीक है. तो किसी टारगेट क्या हुआ? Target could be your homepage in this case. So I'm making it easy for you. Target could be your button. Target could be any component on web design. So the time to acquire a target, which could be any of these UX components, is a function of the distance and size of the target. तो यूजर के हाथ से वो बटन कितना दूर है और वो बटन कितना बड़ा है, इस पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा यूजर को वो बटन प्रेस करने में. तो अगर आप यूजर को, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब इसका आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. यूएक्स वालों को तो जल्दी समझ में आ जाएगा. कोई वेबसाइट बाय करने के लिए, देखो कोई वेबसाइट है, मिंत्रा है, अमेजोन है, तो उनका जो शॉप नाउ का बटन रहता है ना, बाय नाउ का बटन रहता है, वो काफी बड़ा रहता है. इट्स वेरी नियर टू, it's very accessible, it's very easy. It is found by American psychologist Paul Fitts in 1954. So this is about almost 60 years since this law has been found. He predicted that the time required to rapidly move to a target area, don't get confused, it could be just a button or a screen, as I said, on your digital app, website or product. He predicted that the time required to move to a target area is a function of distance and width.
डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द टारगेट। तो ये मैथमेटिकल मॉडल यहाँ पे दिखाया गया है। नाउ इन यूजर नॉलेज, ये देखो समझते हैं। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे डायग्राम्स डाले हैं, उनको देखकर हम समझते हैं। ओवरव्यू, टच टारगेट शुड बी, टच टारगेट्स जो भी होते हैं, टच बटन्स होते हैं, क्लिक बटन्स होते हैं, तो दे शुड हैव दीज प्रॉपर्टीज। तो अच्छे यूजर एक्सपीरियंस में क्या होता है, ये टच टारगेट्स में ये प्रॉपर्टीज होते हैं। दे फॉलो दिस लॉ, दे फॉलो फिट्स लॉ। ठीक है, नाउ लेट मी रीड दिस पॉइंट्स व्हिच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गुड यूजर टच टारगेट्स। दे आर लार्ज एनफ फॉर यूजर्स टू एक्यूरेटली सेलेक्ट। जैसे मैंने बताया कि अगर 1 पिक्सल का बटन होगा सबमिट का, तो यूजर को दिखेगा ही नहीं, फॉरगेट अबाउट क्लिकिंग दैट। सो द टच टारगेट शुड बी लार्ज एनफ फॉर यूजर्स टू एक्यूरेटली सेलेक्ट देम, शुड हैव एम्पल स्पेसिंग बिटवीन देम। स्पेसिंग नहीं होगा तो क्या होगा पता है आपको? पता है स्क्रीन पे एक प्रेस होने के बजाय दूसरा प्रेस हो जाता है। सो इफ योर टच टारगेट शुड बी well defined, your touch target should be big enough for user thumb to fit in, user's finger to touch it well. Okay, and third point is placed in areas of an interface that allow them to be easily acquired. तो ये हमने ऑलरेडी समझ लिया, ये जो easy medium hard है, these are places of interface, places of acquire। तो जहां पर यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा, ऐसे एरियाज में रखो आपके टच टारगेट्स। तो ये टच टारगेट्स के ओवरव्यू हमने समझा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं, बट यू कैन सी, देखो एप्पल गूगल इनके गाइडलाइंस सबके डिफाइंड है, एंड दे आर प्रीटी मच द सेम। तो अगर आप एप्पल गाइडलाइंस देखोगे, इफ यू रिफर टू द ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस व्हिच एप्पल यूजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स, इट्स 44 by 44 पॉइंट। मिनिमम से मिनिमम 44 by 44 पॉइंट का वो स्क्वायर देंगे आपको वहां पे टच एरिया के लिए। ये दिस इज द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस बाय एप्पल। इफ यू सी गूगल मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस, इट इज 48 by 45 डीपी। वेब कॉन्टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस है, WCAG फोरम जो है, उनका भी 44 by 44 CSS पिक्सेल्स में वो लोग डिफाइन करते हैं। और 1 सेंटीमीटर is almost equal to 44 point, as designers would know. So it's one by Nielsen Norman group. Another UX specifications group है Nielsen Norman। उन ग्रुप्स का डेफिनेशन कहता है कि 1 by 1 सेंटीमीटर का आपको टच एरिया देना चाहिए। तो आपको इससे बड़ा बनाना है तो बनाओ बटन, बट इससे छोटा मत बनाओ, बिकॉज दैट विल बी अ लेस टच एरिया फॉर यूजर टू टैप। ओके, हिक्स लॉ, द टाइम इट टेक्स टू मेक अ डिसीजन इंक्रीजेस विद द नंबर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ चॉइसेस अवेलेबल। कि जितने ज्यादा ऑप्शंस हम रखते हैं यूजर के लिए या शॉपिंग के लिए या वेबसाइट पे जितने ऑप्शंस रखते हैं, उतना यूजर ज्यादा कंफ्यूज होता है। सो मोर इज नॉट नेसेसरली बेटर, इज द मीनिंग ऑफ दिस लॉ। लेस इज मोर एक्चुअली, है ना? तो चलो आगे का देखते हैं, इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। तो लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ दिस लॉ। हिक्स लॉ इज फॉर्मुलेटेड बाय 2 साइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स टू बी स्पेसिफिक, इन 1952। तो ये लॉ भी बहुत पुराना है, ये कोई अभी इन्वेंट नहीं हुआ है, ये 60-65 साल पहले ये इन्वेंट हुआ है। इट इज फॉर्मुलेटेड बाय विलियम एडमंड हिक। हिक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया है, तो इसलिए उनके नाम पर ये लॉ है। एंड हिज असिस्टेंट, अनदर को पार्टनर ही हैड इन फाइंडिंग दिस, इज रे हाइमैन। 1998 का गूगल का पेज देखो, होम पेज, और 2020 का पेज अभी गूगल का देखो, या 23 का देखो। अगर गूगल का होम पेज अभी भी ऐसा होता ऊपर वाला, तो आप सर्च कैसे करना है वो भी आपको सोचना पड़ रहा है थोड़ा। सो गूगल एक्चुअली सिंप्लीफाइड दिस। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो गूगल ने किया है, वो किस लॉ को फॉलो किया है? Hick's law को फॉलो करके गूगल हैज सिंप्लीफाइड दिस। लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ दिस लॉ एंड इट विल अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड। मिनिमाइज चॉइसेस व्हेन रिस्पांस टाइम्स आर क्रिटिकल टू रिड्यूस डिसीजन टाइम। आपके वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं एंड बहुत टाइम लगा रहे हैं डिसीजन लेने में, यू एंड लेट्स से यू आर मॉनिटरिंग दिस, तो आपने देखा कि मेरे वेबसाइट पे लोग आके ना बहुत टाइम लेते हैं, यहाँ स्टेज 1 से स्टेज 2 पे जाने में 1 मिनट ले रहा है। तो क्यों? सो वन रीजन कुड बी दैट देयर आर टू मेनी चॉइसेस फॉर दैट। So minimize choices when response times are more. When response times are critical for you, you have to reduce decision time. तो जब डिसीजन टाइम लोगों को बढ़ रहा है, लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हैं डिसीजन लेने में, तब आपको चॉइसेस को मिनिमाइज करना है। ब्रेक कॉम्प्लेक्स टास्क्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। तो ये देखो, ये भी समझ में आ रहा है, इन ऑर्डर टू डिक्रीज कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड क्या है? So anything that is new, the brain is learning, it will try to grasp it fast. But in order to grasp it fast, it will refer to the previous experiences and shortcuts. जैसे हमने समझा कि ब्रेन क्या करेगा, नई चीजों को समझने के लिए पुराने मेंटल मॉडल्स को यूज करेगा। कॉग्निशन मतलब देखना, समझना, डिसीजन देना, मेंटल मॉडल से टैली करना एंड फाइनल आउटपुट देना। सो जितना भी थिंकिंग का, प्लानिंग का, डिसीजन मेकिंग का टास्क है, वो कॉग्निटिव लोड होता है। तो कोई भी नई चीज देखोगे तो ब्रेन पे लोड आता है पहले। तो व्हेनेवर यू आर प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स टू यूजर, यू ब्रेक इट डाउन, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड। हाँ, वन थिंग एट अ टाइम, तो ब्रेन को समझ में आता है रादर देन बीइंग ओवरलोड। तो ये सबको समझ में आ गया। ओके, थर्ड पॉइंट, अवॉइड ओवरवेलमिंग द यूजर्स बाय हाइलाइटिंग रिकमेंडेड ऑप्शंस। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक है। देखो, हम हाईलाइट करते हैं। सिमिलरली कोई और वेबसाइट होता है तो हम देखते हैं, जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आप यूजर को 4 ऑप्शंस दे रहे हो, 6 ऑप्शंस दे रहे हो, और आपने अगर सेलेक्ट करके नहीं दिया कुछ भी, यू नॉट गिविंग एनी फ्रेंडली हेल्प टू द यूजर कि चलो ये रिकमेंडेड चॉइस है। यूज प्रोग्रेसिव ऑनबोर्डिंग। प्रोग्रेसिव ऑनबोर्डिंग मतलब वो लेट हिम यूज द ऐप फॉर 1 वीक एंड देन वी विल शो अ रिमाइंडर कि प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। ये गेम में भी होता है, गेम डिजाइन में भी यूज किया जाता है, ये ऐप डिजाइन में भी यूज किया जाता है। दिस मींस नॉट आस्किंग यूजर्स टू फिल इन ऑल द ऑप्शंस ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ और फर्स्ट स्लॉट ऑफ ऑनबोर्डिंग। Just break the onboarding down into multiple weeks, multiple days, multiple hours, and so on.
ठीक है। तो एक लाइक अ कंप्लीशन रिमाइंडर यूजर को आते रहेगा कि आपने अपना इतना प्रोफाइल कंप्लीट किया है, आपने अभी सिर्फ हमें ईमेल दिया है बट यू आर गुड टू गो। प्रोग्रेसिव ऑनबोर्डिंग मींस एज यू प्रोग्रेस मोर एंड मोर विद देयर एक्सपीरियंस, एज यू प्रोग्रेस मोर एंड मोर ऑन द ऐप, देन दे विल आस्क यू टू फिल इन मोर ऑनबोर्डिंग प्रोफाइल्स और ऑप्शंस। तो हिक्स लॉ में हम क्या समझ रहे हैं कि हमें ऑप्शंस रिड्यूस करना है, यूजर का कॉग्निटिव लोड कम करना है, यूजर को ट्रबल नहीं करना है, प्रोग्रेसिव ऑनबोर्डिंग यूज करना है। तो व्हेन एंगेजिंग विद द डिजिटल प्रोडक्ट यूजर्स मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ इट वर्क। कॉग्निटिव लोड के बारे में ये स्लाइड है पूरा। कॉग्निटिव लोड पे हमने बात भी की, लेट्स अंडरस्टैंड इट अ लिटिल डीपर व्हाट इट इज। कॉग्निटिव लोड मींस व्हेनेवर यू यूज अ न्यू प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट यू मस्ट फर्स्ट लर्न हाउ इट वर्क्स। ठीक है ना। तो पहले सीखना पड़ता है ना कि क्या करता है, ये कैसे चलता है, कैसे चलता है, पहले आपको समझना पड़ता है, तभी तो इसको चलाओगे। अनदर डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ मेंटल रिसोर्सेज, नंबर ऑफ लिमिटेशन दैट द ब्रेन हैज। तो जितने मेंटल रिसोर्सेज लगते हैं टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद एन इंटरफेस इज आल्सो कॉल्ड एज कॉग्निटिव लोड। ये और एक डेफिनेशन दिया है। तो आपको जितना मेंटल रिसोर्सेज खर्च करना पड़ेगा, जितना ब्रेन लगाना पड़ेगा उसमें, ब्रेन के रिसोर्सेज, न्यूरॉन्स, साइनेप्सेस, न्यूरल पाथवेज आपको बनाने पड़ेंगे, मेमोरी पुरानी एक्सेस करनी पड़ेगी, पुराने मेंटल मॉडल्स एक्सेस करने पड़ेंगे। ये इतना लिटरली नहीं होता है, हमारा ब्रेन बहुत फास्ट काम करता है, तो ये सब ब्रेन में हो रहा है हमें पता नहीं चलता है, इट वर्क्स वेरी फास्ट, बट नॉनदलेस इट इज हैपनिंग। ओके, थिंक ऑफ मेमोरी एज अ लैपटॉप बैटरी, राइट। सो लैपटॉप बैटरी हैज अ लिमिटेशन, फोन बैटरी हैज अ लिमिटेशन। तो कम बैटरी होती है तो हम तुरंत उसको चार्जिंग करते हैं। सिमिलरली आपकी मेमोरी और ब्रेन के रिसोर्सेज की भी लिमिटेशन है। इट कैन नॉट वर्क डे इन डे आउट विदाउट रेस्ट एंड without rest, proper diet and proper exercise. So you will have to give it rest, which means sleep, meditation, other resting exercises. You will have to give it a proper diet, that is good food, healthy foods, timely eating habits, and you will also have to give it good, easy accessibility, that is less cognitive load. So your memory is nothing, is not an infinite resource. It has a battery, and this is talked about for conscious memory. Okay, so that works like a battery. Runs too many apps and the battery begins to drain. ये फोन पे हम सबको पता है, जब 20 apps खुले होते हैं तो हमारा बैटरी जल्दी सक हो जाता है, ड्रेन हो जाता है. So this is nothing but the cognitive load. Okay, so with this, I want to thank you for your time. Hope you learned something today.